Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, in the last lecture we have discussed about the concentration of ore. Concentration of ore can be done by two methods. First one is physical method and second one is chemical method. In physical method we discuss about hand picking, gravity separation, froth flotation method as well as magnetic separation. While in the last lecture we have discussed about chemical method, that is called leaching. Leaching is specifically used for bauxite ore. When bauxite ore is treated with sodium hydroxide, it forms sodium meta-aluminate, which are soluble in water, and the impurities remain left, which are filtered from that solution. And we also discuss about this third main step of metallurgy, that is convert the concentrated ore to oxide. First of all, why we do convert the concentrated ore to oxide? Because it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide, carbonate or any other form. Therefore, usually the metal is converted into its oxide form. Convert the concentrated ore to oxide can be done by following method. First one is roasting, second one is smelting, third one is calcination, fourth one is basimerization. In the previous lecture we have discussed about the roasting. Roasting is the process in which the concentrated ore is heated either alone or with some other material in the excess of air in a furnace. While in the case, copper, nickel, when roasted in air are converted into oxide and sulfur is oxidized to sulfur dioxide. While ore of some metal like lead are partially oxidized and convert into sulfate. We can see this from chemical reaction, that is ore of copper is converted into copper oxide, ore of copper is also converted into copper oxide, and carbon dioxide and water is released from that ore. And in the third ore, that is chalcopyrite, we see that the oxidation of chalcopyrite, roasting of chalcopyrite give us Cu2s as well as Fe(S), iron sulfide and chalcopyrites. ठीक है, तो स्टूडेंट हम इससे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्मेल्टिंग. So what is smelting? Or smelting is called formation of matte. Smelting is basically general term used for various operation. Okay. And it is a process in which a metal is separated from its ore by fusion method. What is formation of matte? Molten cuprous sulfide Cu2s and iron sulfide Fes is called matte. हम आगे देखेंगे कि मैट किस तरह बनता है. इस प्रोसेस में स्मेल्टिंग को फॉर्मेशन ऑफ मैट वाला प्रोसेस भी क्यों बोलते हैं, आगे आपको समझ आ जाएगी. बहरहाल स्टूडेंट, अगर हम स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्साइड और इज फ्यूज्ड इन फ्यूज स्टेट इज रिड्यूस्ड विथ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक टू गेट अ मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. बच्चों, स्मेल्टिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने ऑक्साइड के और जिसकी रोस्टिंग हो जाती है. ठीक है, रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग की जाती है, ये याद रखिएगा. ओके, रोस्टिंग के बाद जो और हमारे पास और के ऑक्साइड बन जाते हैं उसको फ्यूज स्टेट में पिघली हुई हालत में रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम को कार्बन को हार्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कोक. उसकी मदद से हम इसको रिड्यूस करके अपने डिज़ायर मेटल को निकाल सकते हैं. जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे मेरे पास रोस्टिंग की केमिकल रिएक्शन को अगर हम एक बार फिर से देख लें, जैसा कि रोस्टिंग में कॉपर के और मेरे पास कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए थे. ये आप देख सकते हैं कॉपर के ऑक्साइड और ये चाल्कोप्राइट और हमारे पास दो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे. ठीक है, तो इनको किस तरह रिड्यूस करते हैं और इसको किस तरह, इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे. ये जो दो हमारे पास ऑक्साइड बन गए थे, कॉपर के ऑक्साइड हमारे पास जो बन गए थे, उसको सिंपल उसकी स्मेल्टिंग क्या करेंगे. स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, उसको एक भट्टी के अंदर डालेंगे, स्मेल्टिंग वाले चैम्बर के अंदर डालेंगे और फिर क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट कोक को हम यूज़ करेंगे लाइक कार्बन,
कार्बन को यूज़ करके इसको रिड्यूस करके हमारे पास अपना डिज़ायर मेटल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह कार्बन जो है ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देगा और कॉपर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आ जाएगा। अगर मेरे पास लेट्स सपोज जिंक के ऑक्साइड थे तो जिंक के ऑक्साइड भी रिड्यूस हो गया, हमारे पास जिंक मेटल दे देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। जबकि स्टूडेंट हमारे पास चाल्कोप्राइट्स, और अभी हमने देख लिया था कि लेट्स सपोज चाल्कोप्राइट और की ऑक्सीडेशन अगर हम करवाते हैं तो मेरे पास दो किस्म के प्रोडक्ट आते हैं, Cu2S कॉपर सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाती है। ये तो हमने रोस्टिंग वाली रिएक्शन यहाँ लिख ली है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रोस्टेड ओर है। क्या है? रोस्टेड ओर। अब इस रोस्टेड ओर के ऊपर स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस लगाएंगे। याद रखिएगा, इसके ऊपर स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस लगाने से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह इसके ऊपर स्मेल्टिंग प्रोसेस लगाते हैं और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, इसको डिटेल से देखेंगे। ओके, इस ओर को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये जो हमने और अभी डिस्कस की चाल्कोप्राइड वाली, जिससे हमारे पास दो प्रोडक्ट आए, उसको हम क्या करेंगे, उस ओर को द रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विथ कोक एंड सैंड एंड स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ओके, उसको क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालेंगे और इसके अंदर सैंड को ऐड करेंगे और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को ऐड करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। In the first point, the roasted ore is mixed with coke, sand and smelted in a blast furnace। याद रखिएगा, रोस्टेड ओर हमारे पास क्या थी, रोस्टेड ओर हमारे पास चाल्कोप्राइड ओर से जो हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आ गए थे, उसको हम कहते हैं रोस्टेड ओर। ओके, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग द रोस्टेड ओर आर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू iron oxide and the iron oxide then react with silica forming iron silicate which is called sludge। फिर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो रोस्टेड ओर होती है उसकी जब स्मेल्टिंग होती है, जब वो हम उसको गर्म करते हैं, स्मेल्टिंग जब उसकी स्मेल्ट हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। मतलब स्मेल्टिंग में होता ही ये कि फ्यूज़ हो जाना, पिघल जाना। जब वो हमारे पास पिघल जाती है रोस्टेड ओर, तो इसमें हमारे पास जो आयरन होता है, जो रोस्टेड ओर में हमारे पास आयरन ऑक्साइड जो आयरन सल्फाइड जो होता है वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आयरन ऑक्साइड हमारे पास सिलिका के साथ बांड बनाकर हमारे पास आयरन सिलिकेट बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेज। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए थे, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। चाल्कोप्राइड ओर से हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए थे, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको कलेक्टिवली कहते हैं रोस्टेड ओर। अब इस रोस्टेड ओर में क्या किया, इस रोस्टेड ओर में हमने क्या डाला, इस रोस्टेड ओर को हमने स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए भट्टी के अंदर रख लिया। उसके अंदर हमने कोक को ऐड किया, सैंड को ऐड कर दिया। फिर उस रोस्टेड ओर में जो आयरन था, आयरन सल्फाइड था, वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया और आयरन ऑक्साइड ने सैंड के साथ बांड बनाकर आयरन सिलिकेट बना दिए, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं सिलिकेट। क्लियर, स्लेज। ओके, इसकी केमिकल रिएक्शन की मदद से अगर हम इसको देखें, जैसे कि आयरन सल्फाइड था, स्मेल्टिंग प्रोसेस में इसकी क्या हुई, स्मेल्टिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये करते हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या हुआ, ये हमारे पास पहले आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो गया। अब ये जो आयरन ऑक्साइड था, इसने जो हमने सिलिकेट ऐड किया था, सैंड पार्टिकल ऐड किए थे, उसके साथ बांड बनाकर हमारे पास आयरन सिलिकेट बना दिए, जिसको हम कहते हैं स्लेज। और ये स्लेज जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास जब बन जाता है तो ये हमारे पास मिक्सचर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, स्लेज इज लाइटर देन मोल्टन सल्फाइड एंड कॉपर, मोल्टन सल्फाइड ऑफ कॉपर एंड आयरन। स्लेज जो होता है ये कॉपर के सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड से हल्के होते हैं और ये हमारे पास उस भट्टी के अंदर जो मिक्सचर होता है उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, जिससे हम उस स्लेज को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बात क्लियर है, स्लेज को हमने रिमूव कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ एक ही ओर को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब पॉइंट नंबर थर्ड, द क्यूप्रस सल्फाइड। अब उस मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड के और भी प्रेजेंट है। अब क्यूप्रस
क्यूप्रेस सल्फाइड के जो और हमारे पास उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रेजेंट था वो भी हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो क्यूपरस ऑक्साइड आल्सो इन अ ब्लास्ट फर्नेस इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म copper oxide which is Cu2O, okay, which you can see with the help of chemical reaction, that is copper sulfide cuprous sulfide की ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास क्या बना, Cu2O कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हो गई। क्लियर। अब हमारे पास मिक्सचर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिक्सचर के अंदर एक ये प्रेजेंट है और स्लेज को तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं ये तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाता है ब्लास्ट फर्नेस से। क्लियर। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो होता है, द कॉपर ऑक्साइड देन रिएक्ट विथ अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड टू फॉर्म क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा आयरन सल्फाइड जो है, ये सारा का सारा आयरन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाए और आयरन ऑक्साइड फिर सिलिकेट के साथ बांड बना के स्लेज बना दे और स्लेज हम वहाँ से रिमूव करें। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे मिक्सचर के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, तो साथ साथ रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, कुछ फेरिक सल्फाइड जो अनरिएक्टेड फॉर्म में होगा, जो अनरिएक्टेड फॉर्म में जिसने फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाया होगा, आयरन ऑक्साइड नहीं बनाया होगा, ये जो आयरन सल्फाइड होगा जो अनरिएक्टिव जो रह जाता है, जो अनरिएक्टेड होता है, वो हमारे पास किसके साथ बांड बनाता है, वो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ, जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर बन जाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, ये वाला और ये वाले प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं। क्यूप्रेस कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड जब मिलते हैं, क्यूप्रेस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड जब आपस में कॉपर ऑक्साइड देन रिएक्ट विथ अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ये दो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है वो आपस में बांड बनाकर दोबारा से क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। दो प्रोडक्ट हमारे पास फिर से आ जाते हैं, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड आपको पता है, आयरन ऑक्साइड अगर आपके मिक्सचर के अंदर बन जाए तो वो सैंड के साथ बांड बनाकर क्या बनाते हैं, स्लेज बना देते हैं। फिर से ये क्या करेगा, फिर से ये आपके पास सैंड के साथ रिएक्ट होगा, सिलिकेट के साथ रिएक्ट होगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट दोबारा बनाएगा। फिफ्थ स्टेप में दी आयरन ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद सिलिकेट फॉर्मिंग आयरन सिलिकेट। तो आपने देख लिया जिसको हम स्लेज कहते हैं। फिर से हमारे पास आयरन ऑक्साइड जो था वो सिलिकेट के साथ कंबाइन होकर हमारे पास आयरन सिलिकेट दोबारा बन जाते हैं, या स्लेज जिसको बोलते हैं, जो हमारे पास सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास हमारे मिक्सचर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रह जाते हैं, हमारे मिक्सचर के अंदर दो किस्म के प्रोडक्ट रहते हैं और वो भी हमारे पास मोल्टन फॉर्म में हो जाते हैं, Cu2S एंड FeS, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मैट, और मैट को भी वहाँ से स्लेज होल से वहाँ से निकाल दिया जाता है। क्लियर। आफ्टर स्लेज हमारे पास हमारे मिक्सचर के अंदर सिर्फ दो ही प्रोडक्ट रह जाते हैं, दैट इज क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मैट, और उसको भी फिर हम स्लेज होल से रिमूव करवा देते हैं। स्लेज होल से रिमूव करवाने से इसके ऊपर फर्दर क्या प्रोसेस करना होता है उसके लिए हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 6 पॉइंट के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक बार फिर मैं बाद में इसको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो स्मेल्टिंग में सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमारे पास जो दो किस्म के और आए थे, आयरन सल्फाइड, उसकी स्मेल्टिंग होकर हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन गया। उसके बाद हमने इसके अंदर
सैंड ऐड किया था, इसने सैंड के साथ बॉन्ड बनाकर स्लेज बना दी और स्लेज को हमने उस भट्टी के टॉप से हमने उस रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड जो प्रेजेंट था उसकी ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आ गया था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से एलिमिनेट हो गया था। अब कॉपर ऑक्साइड जो था वो हमारे पास अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड जो हमारे मिक्सचर के अंदर अनरिएक्टेड फॉर्म में जो रहता है उसके साथ बॉन्ड बनाकर हमारे पास क्या बनाता था, हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता था और आयरन ऑक्साइड बना लेता था। आयरन ऑक्साइड की फर्दर हमारे पास सैंड के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास क्या बना रहा था, आयरन ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विथ सिलिकेट फॉर्मिंग आयरन सिलिकेट which is called sludge, and sludge is removed from sludge hole. Next, in the mixture we have see that our mixture contain cuprous sulfide and iron sulfide which is called matte and is removed through sludge hole. इस प्रोसेस को क्यों कहते हैं मैट फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो एंड वाले प्रोडक्ट आते हैं उसको कहते हैं मैट, एंड दैट्स वाई we can say that smelting process is called matte formation. Okay, now student, next process is basimerization. Student, यहाँ पे हमारे पास जो मोल्टन कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आ गया था जिसको हमने स्लेज होल से रिमूव किया, उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है जिस प्रोसेस का नाम है बेसिमराइजेशन। अब बेसिमराइजेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है उसको डिटेल से देखते हैं। बेसिमराइजेशन प्रोसेस इज इन्वेंटेड बाय हेनरी बेसिमर। इसको सबसे पहले हमारे पास हेनरी बेसिमर एक केमिस्ट था, उसने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया, इसीलिए उसके नाम पे हमारे पास ये प्रोसेस है। ओके, सेकंड, दिस प्रोसेस इज कैरी आउट इन अ स्पेशल काइंड ऑफ एग शेप फर्नेस। एक की शेप की तरह हमारे पास एक फर्नेस होती है जिसके अंदर ये वाला प्रोसेस करवाया जाता है। आपके बुक के ऊपर पेज नंबर 194 के ऊपर इसकी शेप गिवन है, तो आप अपनी बुक से इसकी शेप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिमराइजेशन वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी बेसिमर एंड दिस प्रोसेस इज कैरी आउट इन अ स्पेशल काइंड ऑफ एग शेप फर्नेस। ओके, इन बेसिमराइजेशन द मोल्टन मैट इज poured in Bessemer converted and calculated amount of sand is added. ये जो हमारे पास मैट आ गया था, क्लियर, इस मैट को क्या किया जाता है, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर, बेसिमर कन्वर्टर हमारे पास वही स्पेशल किस्म का हमारे पास जो इसका एक शेप जो फर्नेस है उसी को बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर। ठीक है, जिसकी डायग्राम आप 194 पेज पर देख सकते हैं। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इन दो और को ऐड करवा देते हैं। क्लियर, और उसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सैंड को भी ऐड करवाते हैं। अब स्टूडेंट, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर आप क्या करते हैं, बेसिमर कन्वर्टर को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, जो हमारे पास आयरन सल्फाइड होता है, जिसके अंदर आयरन सल्फाइड जो होता है हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन ऑक्साइड के अंदर, और ये बेसिमर कन्वर्टर के अंदर एयर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एयर की प्रेजेंस में करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। द आयरन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड एंड दिस आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ सैंड which is called silicate forming iron silicate which is called slag which float on the top of that Bessemer converter which are easily removed. अब हमारे मिक्सचर के अंदर क्या था स्टूडेंट, ये दो मिक्सचर हमने डाले थे मोल्टन फॉर्म में, ये दो डाले थे। जब हम इनको हीट करेंगे तो हमारे पास बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है, बेसिमर कन्वर्टर में हमने डाला होता है सैंड भी डाला होता है। सबसे पहले ये जो हमारे पास आयरन सल्फाइड था ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये सैंड के साथ कंबाइन होके आयरन सिलिकेट बना लेते हैं, जो हमारे पास स्लेज होता है जिसको हम उस बेसिमर कन्वर्टर से उसके टॉप से रिमूव कर देते हैं। क्लियर, जो आप केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं।
आयरन सल्फाइड था जिसकी ऑक्सीडेशन होकर आयरन ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और आयरन ऑक्साइड की जो हमारे पास आ जा गया था, इसकी सिलिकेट के साथ कंबाइन होकर हमारे पास स्लेज बन गया, जिसको हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट हमारे मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्यूप्रस सल्फाइड रहता है। अब क्यूप्रस सल्फाइड से आयरन कॉपर को किस तरह निकालना है उसको देख लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, क्यूप्रस सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस सल्फाइड फॉर्मिंग कॉपर इन अ मोल्टन फॉर्म एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे पास स्टूडेंट क्यूप्रस सल्फाइड होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाती है। अब ये जो हमारे मिक्सचर के अंदर क्यूप्रस सल्फाइड जो है कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारे पास फर्दर क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास पेयर कॉपर आ जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। तो ये स्टेप हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट में हमने क्या करना था, कॉपर को यहाँ से इस डिफरेंट ओर से एलिमिनेट करना था, जो कि हमारे पास मिल गया। ओके, और ये कॉपर जो है हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होता है, यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है लिक्विड। ओके, मोल्टन फॉर्म में, क्लियर। अब ये मोल्टन फॉर्म जो कॉपर होता है स्टूडेंट, कॉपर Cu in this way is known as blister copper because it has porous surface। ये जो कॉपर होता है ये हमारे पास शुरू में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इससे जब सल्फर गैस निकल रही होती है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें पोर्स से बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं ड्यू टू escape of sulfur dioxide gas, and it is 95 to 97% pure copper. Beside this it contain iron, manganese, silver, gold etc. और ये जो कॉपर हमारे पास आता है ये तकरीबन 95 से लेकर 97% पेयर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आयरन भी हो सकते हैं, मैंगनीज भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, सिल्वर भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है। अब इस कॉपर को जो हमारे पास 97% या 95% पेयर था, इसको 100% पेयर बनाने के लिए हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको कॉपर के ओर से किस तरह कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सारे स्टेप क्लियर हो चुके होंगे। चलिए हम एक बार फिर इन सब मेन स्टेप को रिवाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्मेल्टिंग जो टर्म होता है इसके मीनिंग क्या होते हैं उसको डिस्कस किया। स्मेल्टिंग इज जनरली टर्म यूज फॉर वेरियस ऑपरेशन और इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओर बाय फ्यूजन मेथड। Next is formation of matte. It is a process in which oxide ore is in fused state is reduced with reducing agent such as coke to get the metal is called smelting or formation of matte. And formation of matte consists of 4 steps. The first step is oxidation of iron sulfide. Oxidation of iron sulfide, when the roasted ore is mixed with coke and sand and smelted in a blast furnace. During smelting, the roasted ore get oxidized to form iron oxide. The iron oxide then react with silica, forming iron silicate, which is called sludge, which we are removed from that mixture. The second step is reaction of iron sulfide with silicate. When iron sulfide react with silicate, it forms sludge which are lighter than sulfide of copper and iron, and hence removed at the top hole of furnace. Third step is oxidation of cuprous sulfide
The cuprous sulfide in a blast furnace also oxidize and form copper oxide. Fourth step is reaction with unreacted iron sulfide and cuprous sulfide. The cuprous oxide react with unreacted iron sulfide to form cuprous sulfide and iron oxide. Next is Bessemerization. Bessemerization or Bessemer process was invented by Henry Bessemer, and a process is carried out in a special kind of egg-shaped furnace. In Bessemerization, the molten matte is poured in Bessemer converted and calculated amount of sand is added. Bessemerization consists of 4 steps. Step number 1, oxidation of iron sulfide. The iron sulfide oxidized to form iron oxide. Second, reaction of iron sulfide with sand. The iron oxide reacts with sand, forming iron silicate, which is called sludge, which float on the top of that Bessemer converted, which we are removed. Third step is oxidation of copper sulfide, cuprous sulfide. In the oxidation of cuprous sulfide, the cuprous sulfide is converted into copper oxide, and copper oxide react with cuprous sulfide, forming copper in molten form, and sulfur dioxide gas is eliminated from that copper. Copper in this way is known as blister copper because it has porous surface, and copper in this process is 95 to 97% pure. Beside this, it contains iron, manganese, silver and gold, etc. And this copper is further passed by another method that is called electro refining or purification of metal. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. आपका होमवर्क ये है कि आपने होल लेक्चर को वर्कशीट के ऊपर लिखना है और साथ में इन केमिकल रिएक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार, ताकि आपको भूले नहीं. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.